कराग्रे वसुदे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले सिदा गौरी प्रभाते करदर्शनम. After the celebration of Dashera, we all are excited to watch the channel of Economics with the music dears. How are you all? And India, yes, come on. We do begin with the rural development. किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना. Okay, rural development dears. रूरल डेवलपमेंट होते क्या है हम सबको पता होना चाहिए. व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड द कंटिन्यूअस एक्शन प्रोसेस इन द एरिया ऑफ रूरल डेवलपमेंट which all as such as human resource will come and infrastructural development, land reforms, poverty alleviation program. ये सारे मिला के अपने रूरल डेवलपमेंट होते हैं. We know that India is a very vast populated country and many of the Indian society, means more than 75% of the Indian society is completely engaged in agricultural activities. So rural people needs to get a complete support from the whole economy. Understand? So this is what we are going to discussing about rural development. Look at here. It is a continuous and comprehensive socio-economic process trying to improve all aspects of rural life. Which all are the aspects of rural life here? Development of human resource, development of infrastructure, land reforms, poverty alleviation program, etc. Understand? Written nahi hai. You don't have to do by heart the things. We have to understand and identify the situation of our society. This is what we have to do. We all are very ideal students. We all are responsible students to know about the condition and the situation of our country. According to that, what the government has taken, what initiative the government has taken, what initiative the society is taken, what all responsibility we are having, this is what we are studying. We are not only studying for scoring marks. We are studying because we want to think about the situation of our country and the society. Understand? So, rural development, what is rural development? It is the continuous and comprehensive action plan in the area of human resource, development of human resource. Human beings को this highly और vast populated country का people को कैसे human resource बना सकते हैं, कैसे अपने infrastructure को develop कर सकते हैं, providing electricity facilities, construction of proper road, understand, and settlement of markets. These all are the infrastructure coming under infrastructural development. And what else? And land reforms. Always rich become rich and poor become poor. So it is not like don't distribute the land equally among the society. Let them do some economic activities. And poverty alleviation programs. No one needs to be stay with the hunger. Everyone needs to get their meal on time and nutrition food. Understand? So this is what meant for rural development. Rural development की मतलब ये है. समझ में आया मेरे बच्चों? And now we say here agricultural credit. As already we know that India is an agrarian country, so many are engaged in agricultural activities. But for the agricultural activities करने के लिए कुछ input उनको चाहिए. Understand? For the input, from where they do get the money? Credit कहाँ से मिलेंगे? पैसे कहाँ से मिलेंगे? Understand? Where the people do go for getting the money or source of income for what? Buying the inputs for their field to grow the crops. Understand? So here agricultural credit. What is agricultural credit? It refers to the credit for farming, money for farming. Understand? And due to the involvement of long time period and uncertain distribution of land, a credit becomes lifeline of Indian agriculture. It is a long term credit people needs.
Immediately they want to get the money back for returning back the credit which they borrowed. कितनी मनी जो बोरो किया है, किसी से लिया है, वो वापस देने के लिए उनको टाइम चाहिए. उनके खेत बाड़ी में काम करके उसमें से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करके उसके आउटपुट निकाल के फिर मार्केट में बेचने के बाद देन आफ्टर व्हाट अमाउंट दे आर गेनिंग दैट अमाउंट फ्रॉम दैट दे कैन रीपे द लोन. देन इट विल टेक टाइम. Understand? And if the people needs to get, Dashera celebration is going outside, you don't worry, come back. And understand? So here, there are sources of getting agricultural credit. Which are the sources of getting agricultural credit? There are two sources, non-institutional and institutional. What is non-institutional? Yes, of course, there is no need for thinking because we are very smart, we already know ma'am. This is, understand? So non-institutional source means the people, those whom we are depending for getting the credit very easily, such as zamindars, sahukas, landlords. Understand? Sahukas means landlords, and our friends, relatives. So these are neighbors. These are the people, those who are having enough income or money. They can provide us loan, the agricultural farmers. But they can be get exploited by the poor agricultural farmers, charging high rate of interest, understand, or taking their produced output. So these all things can happen. And if why the people means in agricultural for agricultural activities के लिए अपने society farmers क्या करते हैं? Mostly they do go for non-institutional credit. What is the reason? There is no need for any other further documentations, collateral submit नहीं करना पड़ते हैं. ये सारे कारण क्या करते हैं? उन लोग ज्यादा इनको किसको डिपेंड करते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स को डिपेंड करते हैं. अंडरस्टैंड? बट अपनी कंट्री में कुछ एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया है थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज. अंडरस्टैंड? सो इसके जो नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. Right? Are you ready for that? Yes, we always ready because we are studying the beautiful subject. No, beautiful, the fantastic subject of economics. My dears, with the celebration of Dashera, we are continuing with the merits and demerits of non-institutional source of credit. From non-institutional credit. The main, source which you have to remember or the reason which you have to remember that नो लीगल फॉर्मेलिटीज. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है. अपने फ्रेंड से हमको लोन लेना है, कुछ अमाउंट लेना है तो इजिली यू विल गेट. नोबडी विल आस्क यू दैट सबमिट योर कोलैटरल्स और एनी डॉक्यूमेंटेशंस. यानी अदर फॉर्मेलिटीज आर नॉट आस्क्ड बाय. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द मेन रीजन दैट एग्रीकल्चरल फार्मर्स को क्या करते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है. उनको एक साइकोलॉजिकल क्या है थॉट प्रोसेस है कि चलो ठीक है अपन फटाफट हमको लोन चाहिए, मुझे 10,000 रुपीज चाहिए तो मैं मेरा दोस्त से नहीं हो तो मैं मनी लेंडर से क्या कर सकते हैं, फटाफट जाके लोन ले लेंगे. उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड? सो non-legal formalities are required and there is no legal formalities are required and the loan is provided any time. कभी भी रात को जाके पूछ लो 8 बजे के बाद यार अर्जेंटली मुझे 5,000 रुपीज चाहिए, 5,000 रुपीज चाहिए मुझे, कल खेत में क्या करना है, सीड्स सो करना है, सीड्स डालना है और मुझे फर्टिलाइजर खाद परचेज करने के लिए जाना है. तो इमीडिएटली दे डू प्रोवाइड बिकॉज पीपल नो दैट द एग्रीकल्चर फार्मर डेफिनेटली द फार्मर डू गिव द मनी बैक after their cultivation with a high rate of interest. So there is no need for that. And easy in taking loan. It is very easy. आसानी है अपन को लोन लेने के लिए. Understand? These are the main merits of taking loan by rural society from the money lenders or the non-institutions. Understand? 3 points आपको याद रखना है. इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ गया है तो डिटेल्स में हम लिख सकते हैं. One is non-legal formalities are required. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, उसमें कोलैटरल सबमिट नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है, अपने आराम से लोन मिल सकते हैं. एंड लोन इज प्रोवाइडेड बाय एनी टाइम. कभी भी आपको मर्जी है जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, यू कैन गो एंड कलेक्ट. नोबडी विल क्वेश्चन यू, नोबडी विल डिनाई यू टू गिव द लोन.
And the third is that easy to taking loan. It is very easy for getting the loan, but the thing behind is coming what is called the demerits. What are the demerits of what? Non-institutional source of credit. Non-institutional source of credit की demerits क्या है? My dears, don't sleep. High rate of interest क्या होते हैं? दिस इज द रीजन. कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में लोन नहीं देते हैं माय डियर्स. अगर इनके पास लोन नहीं है, इजिली हम लोन तो मिल सकते हैं. अरे उसी टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बेचारा भाग के गया है, लोन ले लिया है, अपने काम में लगा दिया है. बट ये जो मनी लेंडर्स करते क्या है माय डियर्स? दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ज्यादा उसको ब्याज देना पड़ता है. ब्याज बोलते व्हाट यू से? ब्याज ब्याज ब्याज. आई नो माय स्टूडेंट्स मेनी टाइम्स मेड मी टू लर्न दैट. मेरा प्यारा सा नन्हे से मुन्ने से 12th एंड 11th क्लास के बच्चे मुझे सिखाते हैं कि मैम ऐसा नहीं बोलते हैं, प्याज ही नहीं बोलना है, प्याज इज ओनली एंड ब्याज इज इंटरेस्ट. माय डियर्स, इधर क्या करते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया. प्याज नहीं देते, ब्याज देना पड़ते हैं, हाई रेट में देना पड़ता है. देन नेक्स्ट में क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स को जो खेतबाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बुद्धू बना देते हैं. एंड नेक्स्ट क्या है? फार्मर्स वेयर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द लेंडर्स विद चीप रेट, लो प्राइस. और क्या करते हैं? लेंडर्स. लेंडर्स कौन होते हैं? जो मनी प्रोवाइड करने वाला. मनी प्रोवाइड करते हैं ना, उनको क्या करते हैं इन्होंने? उनको बोलते हैं कि आपके पास अरे जो वापस देने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास ब्याज दे नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं है, आपने जो प्रोड्यूस किया है ना वो गुड्स को हमको दे देना. कौन सा रेट में? बहुत चीप रेट में दे देना, लो रेट में. बेचारा फार्मर क्या सोचेंगे, यार इनसे बचना है तो हमको क्या करना, सस्ते में हमने मेहनत किया है, जो फिजिकल एफर्ट्स लेके खेत बाड़ी में काम करके आया है, वो चीज को सस्ते में जो मनी लेंडर्स को देना पड़ते हैं. दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ व्हाट? Non-institutional source. My dears, look at here. Non-institutional source की merits क्या है? No legal formalities are required. A loan is provided by any time, easy for taking at any time. And the second is that high rate of interest. Demerits क्या है? Demerits मतलब limitations क्या है? Understand? इसके लिमिटेशंस क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ते हैं. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स को बुद्धू बना सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज फार्मर्स वेयर फोर्स्ड टू, उनको फोर्स किया जाता है कि आपने प्रोड्यूस किया वाला गुड्स को क्या करना है? सस्ते में हमको बेच दो. सो दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इंपॉर्टेंस एंड हार्ट पोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट. मैं बालक तू मादा शेर बाली, ये अटूटे नादा शेर बाली, शेर बाली. The institutional source of credit in rural areas. सबसे पहले क्रेडिट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज व्हाट दे डू प्रोवाइड लोन एडिक्वेटली टू द व्हाट एग्रीकल्चरल फार्मर्स विद रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में एग्रीकल्चरल फार्मर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करते हैं? क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है. That is the first source of credit for agricultural farmers in rural areas. My dears, cooperative credit societies, they provide adequate credit continuously जो according to the requirement of the farmers क्या करते हैं? reasonable rate of interest में, normal rate of interest और minimum rate of interest में क्या करते हैं? loan provide करते हैं. Understand? And this also, another one things what they do is, this also, they also provide directions in agricultural operations. Agricultural operations की क्या है? directions, ideas वगैरह बताते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करने से आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, कहाँ से how you people can take the things to the market. These all ideas and tips and tricks बता देते हैं. कौन? ये अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज actually working for the rural people at a rural development, especially for agricultural farmers. ठीक है.
एंड टू द फार्मर सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं ना, इसलिए उनके क्या कर सकते हैं, वो आइडियाज लेके आप लोग एग्रीकल्चरल फार्मर्स क्या करते हैं, काम करते हैं, उसमें उनको क्या मिलेगा, उनके आउटपुट को वो इंक्रीज करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड अनदर सोर्स विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक इज द अनदर सोर्स ऑफ गेटिंग लोन टू द एग्रीकल्चरल फार्मर्स एज वेल एज द रूरल सोसाइटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है तो रूरल सोसाइटीज को लोन प्रोवाइड करने के लिए दूसरा एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स है अपनी कॉमर्शियल बैंक। वी ऑल नो दैट द कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है। कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स टू द रिक्वायर्ड पीपल एंड दे डू इन्वेस्ट आल्सो। इनके मेन टारगेट क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक्स के, उनको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। अंडरस्टैंड? सो हियर लुक एट हियर, कॉमर्शियल बैंक्स इट इज एन इंस्टीट्यूशन which perform functions of accepting deposit and advancing loans and marketing making investment with the aim of earning profit. Commercial bank के main target earn profit रहते हैं। We know that an example of commercial bank अपना SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, क्या है, विच बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और कौन सा बैंक है, BOI बैंक ऑफ इंडिया हो गया। जैसे मतलब कितने सारे जो बैंक्स है आरबीआई के अंडर जो काम करते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक कलेक्टिवली। सो दीज ऑल बैंक्स आल्सो प्रोवाइड इंस्टीट्यूट मीन्स अबाउट लोन टू द एग्रीकल्चरल फार्मर्स फॉर डूइंग देयर activities. But apart from this, the government came to know that, the Indian government, the society, the economy came to know that these two sources are not enough for agricultural activities and getting the credit for the agricultural farmers. Agricultural farmers को लोन मिलने के लिए ये दोनों सोर्स काफी नहीं है। इसके लिए इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है। कुछ बैंक्स को और रूरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ RRB, रीजनल रूरल बैंक एंड NABARD। अंडरस्टैंड? सो इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर है, हमको रीजनल रूरल बैंक के बारे में भी, हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक RRB होते हैं, रीजनल रूरल बैंकिंग सिस्टम होते हैं। वो बैंकिंग सिस्टम रूरल फार्मर्स के लिए क्या करते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड सिटीजन्स के लिए क्या होते हैं, लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसा ही NABARD है, NABARD जैसा है अपनी RBI होते हैं ना, सेंट्रल बैंक, द एपेक्स बैंक ऑफ ऑल द बैंकिंग कॉमर्शियल बैंकिंग सर्विस इंडस्ट्री, जैसा ही NABARD भी RBI के जैसा ही जो रूरल बैंक्स की बैंकिंग सिस्टम को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। अंडरस्टैंड? इसके बारे में अपन डिटेल में नाउ वी आर गोइंग टू RRB, Regional Rural Bank, RRB. Understand? So see, these banks are set up to promote credit facilities in rural and backward areas of the country. रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज ऑफ आर देश के लिए, अपना नेशन के रूरल और बैकवर्ड एरियाज में क्या करना है, ये जो रीजनल रूरल बैंक सेटअप किया गया है कि रूरल लोगों के लिए क्या करना है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। Understand? This bank is set up in district level of each and every region of the country. हर एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये जो RRB बैंक क्या किया है, सेटअप किया गया है। इनका मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रिक्वायर्ड पीपल। Understand? So these banks are set up to promote credit facilities in rural and backward areas of the country. They operate at district levels and focus on credit. डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, फोकस ऑन क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द वीकर सोसाइटी। ठीक है, गरीब लोगों के लिए, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के लिए ये जो रीजनल रूरल बैंक सेटअप किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, रीजन्स का डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक सेटअप किया है। किसके लिए? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लोन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बैंक हैज कम, दैट इज NABARD. You know NABARD? What is the full form of NABARD? When does NABARD set up in our country? NABARD means
There is no meaning. It's a bank. What is the full form of NABARD? NABARD is the National Bank for Agriculture and Rural Development. This bank is set up in our country in the year of 1982. Look at here, NABARD. It's a National Bank for Agriculture and Rural Development. And it is an apex bank in agricultural credit. It is the main branch of bank, main apex bank like our RBI ke jaisa. So, apex bank of rural credit. So, this bank is established in the year of 1982. 1 मास में आ सकते हैं. NABARD कब establish हुआ है? 1982 में establish हुआ है. And the bank has been entrusted with the matters. ये बैंक क्या क्या काम करते हैं? Concerning policies, policies को concern करते हैं. Planning and operations, so plan करते हैं requirement के हिसाब से. And in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural areas of the country. Rural areas of the country में क्या क्या economic activities का requirement है, agriculture में क्या क्या changes लेके आना है, वहाँ कहाँ पर उसको improvements required है, कहाँ पर उनको source of income चाहिए. So these all plannings are concerned and the policies are made by the main king of rural areas and the main king bank of rural areas. That is what called a NABARD. Remember, NABARD means National Bank for Agriculture and Rural Development. This bank is established in the year of 1982. The main target is providing agricultural credit and other credit facilities for economic activities in rural areas. This bank is working for the development of agricultural sector in rural areas of the country. Understand? Next agricultural credit is SHGS. It is very familiar you all because in 10th class you have already learned this self-help group. Understand? So this is the last agricultural from this topic, agricultural credit topic की टॉपिक से उसके जो लास्ट पॉइंट है SHGS group means a self-help group. It is the small group of poor society, poor people, and they help each other to solve the फाइनेंशियल प्रॉब्लम और क्रेडिट प्रॉब्लम. एक इन लोग क्या करते हैं, मेंबर्स को क्या करते हैं, मेंबर्स इकट्ठा होके स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करके अपनी सेव करते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम को क्या करते हैं, ये जो इनका ग्रुप के नाम से बैंक में सेव किया जाता है. फिर उसमें से जो लोन मिलते हैं ना, अगेंस्ट दैट लोन बाय द ग्रुप, बाय देयर ग्रुप नेम, SHGS जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम से एक कॉमन नाम होते हैं, वो नाम के by that name they can draw loan from the bank and those who required, वो लोगों के लिए उनके लिए क्या करते हैं, उनका मेंबर्स में से किसको जरूरी है उनको लोन को प्रोवाइड किया जाता है. Understand? So this is what called as self-help group. You have to understand. It is the small group of poor people. They help each other to solve the problem. SHGS promote small saving among the members. छोटे छोटे सेविंग अमाउंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड किया जाता है. दे सेव द सेविंग्स केप्ट इन द बैंक बाय द नेम ऑफ देयर ग्रुप. जो सेविंग्स होते हैं उनका जो स्मॉल कंट्रीब्यूटेड अमाउंट होते हैं वो उनके ग्रुप के नाम से क्या करते हैं, बैंक में सेव किया जाता है. एंड later on these common fund used to give small loan in members. ये जो कॉमन अमाउंट है, जो कॉमन नेम के साथ मीन्स उनका ग्रुप के नाम के साथ उन लोग जो बैंक में डिपोजिटेड किया है, सेव किया वाला अमाउंट में से अगेंस्ट दैट अमाउंट दे गेट लोन, दे कैन बोरो लोन एंड दैट लोन is given to the emergency required person of their group member or for the group member को दिया जाता है. Understand? So the government also provides some partial funds to this group. Government भी ये जो SHGS group को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको लोन मिलने के लिए. Dears, this is all about the agricultural credit. सबसे पहले हमने there are two categories में डिवाइड किया था, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल में जमींदार जो लैंडलॉर्ड्स
हो गया है, सेह्यूकास हो गया है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के ऊपर किया, उसका मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है उसका, ये सारी चीज हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आ गया। इंस्टीट्यूशनल सोर्स में हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के ऊपर, वो रीजनेबल रेट में क्या करते हैं, लोन एग्रीकल्चरल फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के आउटपुट को इंक्रीज करा सकते हैं। इससे अलावा अपन कॉमर्शियल बैंक के ऊपर स्टडी किया है। कॉमर्शियल बैंक की फंक्शन ऑलरेडी हमको पता है, एक्सेप्टिंग डिपोजिट एंड एडवांसिंग लोन्स एंड इन्वेस्टिंग, एंड देयर मेन टारगेट इज अर्निंग प्रॉफिट। ये दोनों बैंक से मीन्स कोऑपरेटिव बैंक और अपना कॉमर्शियल बैंक से क्या है, आखिरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना इंडिया वास्ट है, इंडिया के मैक्सिमम पीपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज है, उनको क्रेडिट चाहिए, खेतवाड़ी काम करना है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है। इसलिए क्या किया है अपनी गवर्नमेंट ने, एडिक्वेट एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया है थ्रू एस्टैब्लिशिंग द न्यू बैंक्स। दैट इज फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट RRB, रीजनल रूरल बैंक। हर एक डिस्ट्रिक्ट में रीजन वाइज ये बैंक सेटअप किया गया है, क्योंकि पुअर लोगों के लिए जो रिक्वायर्ड पीपल को क्या करना है, लोन प्रोवाइड करने के लिए सस्ते में, अंडरस्टैंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके उनको लोन देना है। उसके बाद हमने नाबार्ड के ऊपर डिस्कस किया है। नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड स्पेशली इन द रूरल एरियाज, एंड दिस बैंक इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1982 में ये एस्टैब्लिश हुआ है। ये बैंक की फुल फॉर्म नाबार्ड कैसे क्या है, उसका फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है, इट इज अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड। ये बैंक सेटअप किया है जो कंसर्निंग टू मेकिंग द पॉलिसीज एंड प्रोवाइडिंग adequate credit to the agricultural people as well as the other people, those who are unemployed and required credit from the banks and the support from the government, understand। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। Then after last we have discussed about the self help groups, SHGS group। It's the group of poor people society, those who are contributing small amount of money within themselves, they pool the amount and deposit in their saving account by the name of their group itself, ग्रुप के नाम से डिपॉजिट करते हैं। अगेंस्ट दैट सेविंग अमाउंट दे कैन बोरो लोन फ्रॉम द बैंक विद लेस इंटरेस्ट रेट, एंड दैट अमाउंट दे कैन प्रोवाइड टू द रिक्वायर्ड नीडी member of their group, and as well as the government also partially helping the poor people for means this group for getting credit facilities. This is what the agricultural credit in rural development. Now we are moving to, I know that there is no difficulties in this chapter, and don't skip it. Five marks weightage is only 5 marks. I didn't told you the 5 marks. Understand? It's challenging what करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडिया, लाइक उसी चैप्टर में से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया अपना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया है, अभी रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। 1 more चैप्टर इज देयर, वो भी अपन अपलोड करने वाला है। आज मैं पूरा वीडियो आपको साथ में देने वाला है, ये चैप्टर का कंप्लीट वीडियो दे रहे हैं मेरे बच्चा। अच्छे से पढ़ाई करके, बढ़िया से पढ़ाई करके, स्कोर करके, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड एवर ग्रीन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में से फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। बेले बेले दीज ऑल मार्क्स आर इन आवर pocket. Now it's a time for discussing about agriculture marketing, right? Indian farmers always facing the problem of selling their produced goods in the market. What type of problem they are facing, why they are facing, these all things we are going to discussing, and what is the measures taken for avoiding such kind of problem faced by our Indian farmers. That is what upcoming topics making us to understand. So here agricultural marketing होते क्या है? Indian farmers always faces the problem of selling their products in the market at a right price. सही प्राइस में जो प्रोड्यूसर गुड्स को मार्केट में बेचने के लिए उनको प्रॉब्लम हमेशा आता है। उनके जो प्रोड्यूसर गुड्स का एक्सैक्ट वैल्यू नहीं मिलते हैं, उनको लॉस होते हैं, कभी कभी उनको लॉस मतलब उनके प्रॉफिट को लॉस करना पड़ता है। एंड द बेसिक डेफिसिट दे फेस इन द प्रॉब्लम टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, एंड हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट अराइजेस। सो मार्केट प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम नहीं है प्रोड्यूसर गुड्स को लेके जाके मार्केट में बेचने के लिए। वी नो दैट मार्केट होते क्या है, वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दे आर गैदरिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अंडरस्टैंड। सो जैसे प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम होना चाहिए। गुड्स को क्या करना है, प्रोड्यूसर गुड्स को एग्रीकल्चरल फार्मर्स को कैरी करना है, वहां पर जाके बेचना है विदाउट लूजिंग
losing their profit. उनको सपोर्ट प्राइस एटलीस्ट मिलना चाहिए. सो वहां पर अपनी फार्मर्स फेस कर रहा है. अभी हमको पता होना चाहिए एक्चुअली मार्केटिंग सिस्टम होते क्या है. व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. सो इट इज, ये इम्पोर्टेंट है, देखो मीनिंग. इट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स असेंबलिंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स. असेंबल करना है, इकट्ठा करना है कितने गुड्स जो प्रोड्यूस किया है खेत में, उन्होंने हार्वेस्टिंग किया है, वो चीज को असेंबल करो, इकट्ठा करो. एंड स्टोरेज, जो बचा हुआ जो इकट्ठा किया वाला गुड्स को प्रॉपर वेयर हाउस में और स्टोर हाउस में स्टोर करना है. और प्रोसेसिंग उसको प्रोसेसिंग करना है. उसके आगे जो नेक्स्ट फंक्शन क्या है उनको कैरी करना है, जो मार्केट प्लेस में लेके जाने के लिए. और उनको सेग्रीगेट, जो कोई चीज को सेपरेट सेग्रीगेट करना है वो चीज को सेग्रीगेट करना है. सो स्टोरेज, then processing and transportation to carry from that field into the marketplace and the packaging. उसको प्रॉपर तरीका से पैकेज करो, ग्रेड करो. ग्रेडिंग यानी अच्छी क्वालिटी वाला आइटम्स को जिससे सेपरेट करना. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. ये जो अलग अलग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन्होंने प्रोड्यूस किया है वो अलग अलग कंट्रीज में क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, अलग अलग रीजन्स में भेजना है. ये सारी चीज को अपन बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. सो द सरप्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स आर व्हाट नीड्स टू सेल इन द मार्केट. सो फॉर दैट मार्केटिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए. इट इज द प्रोसेस ऑफ assembling the produced goods and storing the produced goods and processing the goods and transportation to transporting or carrying the produced goods and packaging, grading and selling it in the market or selling it all over the country. The different commodities produced by the agricultural farmers. This is what called agriculture marketing. Now we are discussing detail about the sources of agricultural marketing or the problems faced by agricultural marketing. We will discuss करेंगे. Defects of agricultural marketing. What are the defects of agricultural marketing? That is lack of storage facilities, lack of effective transportation facilities. Rural areas में ये सारी चीज की कमी है बेटा. स्टोरेज फैसिलिटीज का कमी है लोगों को, और इफेक्टिव प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स को कैरी करने के लिए मार्केट में. और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से, अभी प्राइस क्या है, उसका वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, ये सारी चीजों में अवेयरनेस जो रूरल लोगों को मिलना बड़ी दिक्कत है. आज क्या है, एडिक्वेट फाइनेंस, उनके पास एडिक्वेट फाइनेंस नहीं है, जो नीड्स के हिसाब से उनको क्रेडिट मिलने की चांसेस कमी है. एंड इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं है. सो दीज आर द मेन व्हाट डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन आवर रूरल एरियाज ऑफ द country. Understand? And I'm not going to making you children boring. I thought that single video में ये पूरा हो जाएगा, आज ही खत्म कर लेंगे. But two more important points are remaining that with full effect and full of effect and energy I will give you. That is measures taken for agricultural marketing and diversification of agricultural market. Understand? Don't skip that topics. That is also very very important. And soon I am uploading. Till the time you watch only this and gain and score 100 on 100 bars in our evergreen subject of economics. Signing out, Saida Kishore, my dears. Pahi Mam Shri Rajarajeshwari Kripagari Shangari Pahi Mam Shri Rajarajeshwari. Economics with the music. Bye bye.